الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا والصلاة والسلام على حبيبه سراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته إلى يوم القيامة كثيرا كثيرا. سبحان الله ما شاء الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المثل الأعلى. آمنت بالله صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ تور پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. آمین. حضرات، آپ کے دیار ناز میں میری پہلی حاضری ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ محبتوں کے ساتھ سماعت کریں گے انشاءاللہ. اور رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنے مقصد کی طرف بڑھوں گا، لیکن آپ کی توجہ درکار ہے، توجہ کی ضرورت ہے. اور ہم یہاں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا غوث بھی بیدار ہے اور غوث کے چاہنے والے بھی بیدار ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. آئیے محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا جائے. پڑھے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور محبتوں کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. ابھی میں نے اور آپ نے مل کر نبی کی بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ درود و سلام پیش کیا. بے شک. تھوڑا سا موڈ بنائیے. ہم اہل سنت والجماعت ہیں. کون ہیں؟ اونچا اہل بولو. سنت والجماعت. ہم سب سنی ہیں اور سنیوں کی قسمت بہت بلند ہے. بے شک. حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں بڑی پیاری بات فرمائی. یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. قرآن فرماتا ہے کل قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے. اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا یہ خوبصورت چہرہ کس کا ہوگا؟ فرمایا تبیض وجوہ اہل سنتی والجماعہ.
سبحان اللہ جن کا چہرہ کل قیامت کے دن چمک رہا ہوگا وہ سنیوں کی جماعت، سبحان اللہ سبحان اللہ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ وَالضَّلَالَةِ، اور جن کا چہرہ کل قیامت کے دن کالا ہوگا، جو بلیک فیس والے ہوں گے وہ سب بدعتی وہابی دیابنا ہوں گے۔ بے شک تو الحمدللہ ہمارا چہرہ یہاں بھی چمک رہا ہے اور وہاں بھی چمکے گا، تو ہم اسی چمک کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اپنے محبتوں کے ساتھ ابھی نبی کریم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا۔ آج دنیا کے اندر ایک قوم یہ کہتی ہے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش نہ کرو، یہ ناجائز ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، ہم چلتے ہیں نبی کے گھر والوں کی بارگاہ میں، اور خاص چلتے ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان نانا جان حضرت امام باقر کی بارگاہ میں۔ حضرت امام باقر کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور ایک چاندی کی ڈبیا لے کر کے آیا تھا، کہنے لگا حضرت اس میں 7 بال ہیں، میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ یہ بال نبی کے ہیں یا نہیں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز اور میتھڈ دیکھیے، اگر یہ مسئلہ میرے پاس آتا، شاعر اسلام زین العابدین صاحب کے پاس آتا اور رقیب اجلاس حضرت حافظ و قاری یوسف سنبھلی صاحب کے پاس آتا، اگر آنے والا رات میں آیا ہوتا یہ چراغ روشن کرتے اور اس کے بعد میں اس ڈبیا سے بالوں کو نکالتے، اگر دن میں آتا تو سورج کی روشنی میں اس بالوں کو رکھتے اور رکھنے کے بعد دیکھتے کہ بالوں کا سایہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں، اگر بالوں کا سایہ نظر نہیں آتا تو فیصلہ کرتے نبی کے بولو نبی کے بال ہے، اور اگر بالوں کا سایہ نظر آ جاتا تو فیصلہ کرتے نبی کے بال نہیں ہے۔ لیکن قربان جاؤ حضرت امام باقر کی شخصیت پر آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے، آپ نے یہ میتھڈ اور اسلوب اختیار نہیں کیا ہے، آپ اس طریقے سے ان بالوں کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ مریدین آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، جتنے مرید بیٹھے تھے سب سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر میرے نانا جان کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرو۔ ادھر مریدین سلام پیش کرتے چلے جاتے ہیں، امام باقر ڈبیا کھولتے ہیں، 1 بال 2 بال 3 بار 4 5 6 7 کو نکالتے چلے جاتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے، روایت میں آیا ہے کہ 4 بال ایسے تھے جو نبی کے سلام پر جھوم بھی رہے تھے اور ہتھیلی پر سیدھے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن 3 بالوں میں حرکت پیدا نہیں ہوئی۔ امام باقر نے 3 کو پھینک دیا، 4 کو محبت سے ڈبیا میں رکھا اور فرمایا جا اپنے علاقے والوں سے کہہ دینا کہ ان 4 بالوں کا تعلق تو نانا جان سے ہے، لیکن 3 بالوں کا تعلق نانا جان سے نہیں۔ سائل نے دامن تھاما، کہنے لگا حضرت یہ فیصلہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ علاقے میں مشہور ہے یہ 7 بال نبی کے ہیں اور آپ صرف 4 بالوں کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ نبی کے ہیں۔ سنیو اب اس جملے پر توجہ دینا، حضرت امام باقر نے بڑا پیارا جواب دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا تو نے دیکھا نہیں جب نبی کریم کی بارگاہ میں میرے مریدین اور میرے چاہنے والے سلام پڑھ رہے تھے، جو نبی علیہ السلام کے سلام کی آوازیں گونج رہی تھی، فرمایا جب مرید سلام پڑھ رہے تھے جو نبی والے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو نبی والے تھے وہ نبی کے سلام پر جھوم رہے تھے اور جو نبی والے نہیں تھے وہ نہیں جھوم رہے تھے۔ سنیو فیصلہ ہو گیا، نبی کے سلام پر وہی جھوما کرتا ہے جو نبی والا ہوتا ہے، اور نبی کے سلام سے وہی چڑھتا ہے جو نبی کا غدار ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت سرزمین کھنا گوٹیا ازہری کمیٹی علامہ شہزاد رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اب یہیں پر امام اہل سنت کی بارگاہ میں لے چلوں۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو کیوں مانتے ہو، ہر جگہ اعلیٰ حضرت کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ نبی کا ذکر بعد میں ہو رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا پہلے۔ ہم تو نسبتوں والے ہیں، غلاموں کا ذکر پہلے ہوتا ہے، آقاؤں کا ذکر بعد میں۔ بے شک، ارے جنت میں حضرت بلال حبشی پہلے داخل ہوں گے، بے شک، السلام کی سواری کی لگام پکڑ کر داخل ہوں گے۔ رب یہی دکھانا چاہتا ہے، جو نبی کی غلامی کو اپنے گلے میں ڈال لیا کرتا ہے، جو نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال دیتا ہے، اللہ اس کو معظم کر دیا کرتا ہے۔ اور کتنا معظم کرتا ہے، حبشہ سے غلام بن کر کے آیا تھا، رسول پاک کی بارگاہ سے جڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کو غلام نہیں رکھا بلکہ امام بنا دیا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں فتویٰ لگا سلام مت پڑھو، اب تھوڑا موڈ بنا لیجیے، محبت سے بولیے یا رسول اللہ۔
یا رسول اور اللہ محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ یا رسول اعلیٰ حضرت کے دور میں فتویٰ لگا سلام مت پڑھو، اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی اور لکھنے کے بعد سلام بھی لکھ دیا، بڑا پیارا سلام لکھا۔ کہنے لگے کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ اعلیٰ حضرت کی زبان نبی کے مدح و سرائی میں، نبی کے سلام میں، نبی کی تعریف میں کھلتی چلی جاتی ہے۔ ادھر اعلیٰ حضرت نے ایک بار سلام پیش کیا، بدعقیدہ کے پیٹ میں تکلیف شروع ہو گئی، کلیجہ پھٹنے لگا۔ یہ احمد رضا خان نبی کی تعظیم کرتا اور کرواتا ہے، نبی کی تعظیم سیکھتا اور سکھاتا ہے، اعلیٰ حضرت پر فتویٰ لگایا یہ شرک و بدعت کیا کرتے ہو احمد رضا خان، بریلوی خان یہ کیا کر رہے ہو۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا بدعقیدہ نے ایک بار پر فتویٰ لگایا تھا، امام اہل سنت نے پھر قلم اٹھایا، اب ایک کا پیچھا چھوڑ کر اعلیٰ حضرت لاکھوں کی طرف پڑ جاتے ہیں، لکھ دیتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بدعقیدہ پھر بھی فتوے لگاتا ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم جنبش میں آتا ہے۔ امام احمد رضا خان خاموش نہیں بیٹھتے بلکہ مصطفیٰ کی محبت کا اظہار کرتے چلے جاتے ہیں، بدعقیدہ بدعقیدہ کو منہ توڑ جواب دیتے چلے جاتے ہیں۔ جب ایک بار سلام پر فتویٰ لگایا تھا، اعلیٰ حضرت نے لاکھوں بار پڑھا تھا، جب لاکھوں پر فتویٰ لگا تو اب لاکھوں کا پیچھا چھوڑ کر لکھ دیا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اب لاکھوں پر آ گئے، دیکھا بدعقیدہ اب بھی نہیں مان رہا ہے، فتوے پر فتوے لگاتا چلا جا رہا ہے، فتوے بازی کرتا چلا جاتا ہے، خرافات مچاتا چلا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم پھر جنبش میں آیا، فرمایا اچھا ایک بار پڑھا تھا فتویٰ لگایا تھا، لاکھوں بار پڑھا تھا فتویٰ لگایا تھا، کروڑوں بار پڑھا تھا فتویٰ لگایا تھا، اب اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھو، امام اہل سنت کا عشق آگے بڑھاتا ہے اور عشق جوڑتا ہے۔ احمد رضا خان یہ کہ لمٹ انداز میں پڑھ رہا ہے، کیا تو سیمت انداز میں پڑھ رہا ہے، کیا محدود اور شمار کے ساتھ پڑھ رہا ہے؟ اب شمار کا پیچھا چھوڑ دے، انلمٹ مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا چلا جا، لکھ دیا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد، ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام۔ ارے اونچا بولو، ہم فقیروں کے سرور، ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام۔ دیکھا اعلیٰ حضرت کی شان کو، ایک بار فتویٰ لگایا، لاکھوں بار پڑھا، لاکھوں بار فتویٰ لگایا، کروڑوں بار پڑھا، کروڑوں بار فتویٰ لگایا، کروڑوں پر فتویٰ لگایا، تو آپ نے فوراً کروڑوں کا پیچھا چھوڑ کر بے حد پڑھ دیا۔ اسی لیے تو ہمارا دل اعلیٰ حضرت سرکار کے لیے ہمیشہ مچلتا رہے۔ بے شک حق سبحان اللہ۔ اور یہ چونکہ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک۔ آپ سب کا تعلق بریلی شریف سے، بے شک اور میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں، میرا بھی آبائی وطن بریلی ضلع ہی ہے، اور میں اپنے بچپنے سے ان باتوں کو سنا کرتا ہوں، اور میں نے اپنی تقریروں میں اس چیز کا التزام کر لیا ہے کہ آج کل جو سنیوں کے درمیان طرح طرح کی پھوٹ پڑی ہوئی ہے، اس پھوٹ کو ختم کیا جائے، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی سچی پکی غلامی کا اظہار کرنا ہمارے لیے ضروری ہو چکا ہے۔ آج اب غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہے، یہ کون غوث ہے؟ یہ وہ غوث ہے جس کی عظمت و بلندی کو ہم نہیں بلکہ خود غوث اعظم نے اپنی عظمت و بلندی کو ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے منصب اور مرتبے کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا طلبت العلم حتی صرت قطبا، آپ فرماتے ہیں وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلًا مَنَالِ، لوگوں میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ نے مجھے قطبیت کا مرتبہ عطا کر دیا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر یہ بھی بتایا وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلٍ مَنَالِ، موالی لوگوں مجھے یہ منصب اور مرتبہ ملا ہے، یہ سعادت مندی حاصل ہوئی ہے، یہ کسی دنیا دار سے نہیں مدنی تاجدار سے حاصل ہوئی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور علم حاصل کرنے کے بعد منصب اور مرتبہ کیا ہو گیا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، لوگوں اللہ نے مجھے وہ منصب اور مرتبہ عطا کر دیا ہے کہ حقیقی مالک تو رب قدیر ہے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے نبی کے صدقے میں یہ کائنات کو میرے حکم کے تحت کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے اگر غوث حکم کرتے، اگر غوث جناتوں کو حکم کرتے تھے غوث اعظم کے قدموں میں آ جاتے تھے، شجر و حجر کو حکم کرتے تھے، شجر و حجر غوث اعظم کی بولی بولتے نظر آتے تھے، زمین کی طرف اشارہ کرتے تھے، زمین غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مانتی نظر آتی تھی۔ بے شک کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو
4 बड़ी खुसूसियतें अता फरमाई थी। तवज्जो फरमाइए जी। मजमे के अंदर आप माहौल को बिगाड़िए मत, बल्कि सही अंदाज में तशरीफ फरमा रहे। चूंकि सैयदना गौसे आदम की मजलिस है और हम जानते हैं हमारा गौस हमारी बातों को सुन रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला यह था कि अल्लाह ने आपको सारे नबियों का सरदार बनाया। ऊंचा बोलो, हमारे नबी को अल्लाह ने सारे नबियों का सरदार, और इधर गौसे आदम को सारे वलियों का सरदार बनाया। बेशक। दूसरी बात देखिए, सबसे ज्यादा मौजज़ात अल्लाह ने हमारे मुस्तफा को अता किए, बेशक। और सबसे ज्यादा करामात गौसे आदम को अता की। बेशक। और सुनिए, सबसे बड़ी उम्मत मुस्तफा जाने रहमत की है। मेरे आका फरमाते हैं कल कयामत के दिन, ये मुस्लिम और बुखारी की हदीस है, आका फरमाते हैं कल कयामत के दिन जन्नतियों की 120 सफ़े लगेंगी, 80 सफ़े मेरी उम्मत की होंगी। तो सबसे बड़ी उम्मत मेरे मुस्तफा की और सबसे ज्यादा मुरीदीन गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्के। और ये भी याद रखें, जब हमारा नबी दुनिया में तशरीफ लाया था तो हमारे नबी के दोनों कांधों के बीच में नबुव्वत की मोहर लगी थी। और हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं, जब गौसे आदम दुनिया में तशरीफ लाए तो सैयदना गौसे आदम के दोनों कांधों के बीच में नबी के पैर का निशान था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और एक बात और सुने, बहुत खूब। अगर कोई नबी के जमाने में नहीं आया था, वर्का इब्ने नौफल ने नबी के वर्का इब्ने अव्वल हो या उनसे पहले के तुब्बा अव्वल हो, जिन्होंने नबी का जमाना नहीं पाया लेकिन दिल में यह इरादा करते चले गए अगर मुस्तफा का जमाना पाते तो नबी के हाथ पर इस्लाम ले आते, अगर नबी का जमाना मिल जाता मोहम्मद अरबी पर कलमा पढ़ लेते। लेकिन अगर किसी ने नबी का जमाना नहीं पाया और दिल में तमन्ना करके दुनिया से चला गया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत दिल में बसाकर चला गया, उलमा फरमाते हैं अगर से उसने रसूल पाक का जमाना नहीं पाया लेकिन फिर भी वो नबी का उम्मती शुमार किया जाएगा। अब आइए बगदाद वाले आका की बारगाह में, अगर कोई ये तमन्ना करता चला गया, चूंकि गौसे आदम से पहले 100 साल पहले जितने वली आते रहे थे सब गौसे आदम की बिशारतें सुनाते रहे थे, खुशखबरियां और मुझसे सुनाते रहे। सैयदना गौसे आदम फरमाते हैं अगर कोई मुझसे पहले आया और उसने दिल में ये तमन्ना की काश गौस में तुम्हारा जमाना पा लेता, अब्दुल कादिर तुम्हारे जमाने में होता, आपके हाथों पर मुरीद हो जाता, आपका गुलाम बन जाता, आपकी गुलामी का मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ रखे। हम बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। अरे भैया बोलो जोर से, बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। और या रसूल अल्लाह के 3 फायदे लेकर चले जाएं, मगर जाना नहीं है, जलसा खत्म होने के बाद जाना, कि आप कह दें कि अभी से ऑर्डर दे दिया चले जाए। पहला फायदा यह है कि जब या रसूल अल्लाह बोला जाता है तो पता चल जाता है बोलने वाला नबी का गुलाम है, और जो नबी का गुलाम है वो जमाने का इमाम है। और दूसरा फायदा यह है कि जब या रसूल अल्लाह बोला जाता है तो नेकियों का मीटर सर्कुलेशन में आ जाता है, नेकियों का में इजाफा होने लगता है। और तीसरा फायदा यह है कि अल्लाह ने अपने महबूब को इस अंदाज से पुकारा है तो खुदा की सुन्नत अदा हो। सुभान अल्लाह। अब सुनिए, मैं अर्ज कर रहा था कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम की तमन्ना लेकर अगर दुनिया से कोई चला गया और दिल में यह इरादा करके चला गया रसूल पाक का जमाना पाता लेकिन नबी का जमाना ना मिला, मोहब्बत रसूल दिल में बसाकर दुनिया से चला गया, नबी का उम्मती शुमार किया जाएगा। इसी तरीके से अगर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्का जमाना किसी दीवाने ने नहीं पाया, गौसे आदम की फजीलतें सुनी थी, मोहब्बत के साथ गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्की मोहब्बतें बसाकर दुनिया में रहता था, तमन्ना यही थी गौस में आपका जमाना पा लेता, आपके हाथों पर मुरीद हो जाता। सैयदना गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्के हाथों बात में आया और दिल में यह तमन्ना लिए बैठा है काश गौस का जमाना मिलता, काश में गौसे आदम के जमाने में होता, आपका मुरीद हो जाता, आपका गुलाम बन जाता। सैयदना गौसे आदम फरमाते हैं वो मेरे गुलामों में शुमार किया जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये गौस की शान है। खुद गौसे आदम फरमाते हैं वकुल्लो वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। लोगों, हर वली की शान ये है कि वो किसी ना किसी नबी के कदम पर होता है और मैं तुम्हारे आका के कदम पर हूं। सुभान अल्लाह। तुम्हारे
आका के कदम पर हूँ। और वली की शान क्या होती है, पहले वली की अहमियत भी सुन ले। हदीस जिब्रील है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस हदीस को रिवायत करते हैं कि अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, पाक परवरदिगार जब किसी बंदे को अपना करीबी करता है तो अल्लाह जिब्रील से कहता है फ़अहिब्बा, ऐ जिब्रील मुझे फला बंदे से मोहब्बत हो गई है तो तू भी उससे मोहब्बत कर। और उसके बाद अल्लाह फरमाता है जा आसमानों में फिरिश्तों के बीच ऐलान कर दे कि अल्लाह ने फला बंदे से मोहब्बत की है, लिहाजा सारे फिरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। उसके बाद अल्लाह फिरिश्तों की जमात को इस जमीन में भेजता है और ऐलान करता है जाओ तुम दुनिया के अंदर जितने लोग बसते हैं सबके दिलों में इस वली की मोहब्बत को पैदा कर दो। पता ये चला लोगों हम अल्लाह के वली से बाद में मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के वली की मोहब्बत का डंका पहले आसमानों में बजता है। पहले रब मोहब्बत करता है, फिर जिब्रील मोहब्बत करते हैं और उसके बाद में सारे फरिश्ते मोहब्बत करते हैं। अब जो वलियों की मोहब्बत को तुम दिलों से निकालने की कोशिश करते हैं उनको मेरा यह पैगाम पहुंचा दो, वली की मोहब्बत को कभी दिल से नहीं निकाला जा सकता, इसलिए कि इनसे सबसे पहले मोहब्बत करने वाली खुदा की जात है, फरिश्ते हैं। और अल्लाह ने इनकी मोहब्बत को ऐसा लोगों के दिलों में बसा दिया है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे वलियों से मोहब्बत करते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और वली ऐसे नहीं बनता है, ऐसे नहीं कि खाना खा लिया पी लिया वली बन गए। वली का नुस्खा भी हदीस में बयान किया गया। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस हदीस को बयान फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, फरमान खुदा का है और मफहूम खुदा का है, अल्फाज मुस्तफा के। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रब्बे कदीर ने फरमाया मा तकर्रबा अब्दुन बिमिस्ली अदाई मफ्तरस्तु अलैहि वला यज़ालु यतकर्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता उहिब्बहु फइज़ा अहबब्तुहु कुन्तु लहु समअन व बसरन व लिसानन व यदन व रिजलन बी यस्मा व बी युबसिर व बी यंतिक व बी यमशी। अल्लाह फरमाता है लोगों वली की शान क्या होती है। रब्बे कदीर फरमाता है जब कोई बंदा फराइज की अदायगी करता रहता है, फर्ज वाजिब को अदा करता रहता है और उसके बाद नफिल पढ़ता है, नवाफिल की कसरत हो जाती है, नफिल पढ़ते पढ़ते अल्लाह फरमाता है वो मेरा करीबी हो जाता है, मैं उसका करीबी हो जाता हूँ, मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे राजी हो जाता हूँ, वो मुझसे राजी हो जाता है। फिर शान क्या होती है, अल्लाह फरमाता है मैं उसका कान हो जाता हूँ, मैं उसका हाथ हो जाता हूँ, मैं उसकी जबान हो जाता हूँ, मैं उसकी आंख हो जाता हूँ, मैं उसका दिल हो जाता हूँ। मतलब क्या है, रब्बे कदीर फरमाता है लोगों अब कान तो उसका होता है लेकिन सुनना मेरा हुआ करता है, आंख तो उसकी होती है देखना मेरा होता है, हाथ उसका होता है पकड़ना मेरा होता है, पैर उसका होता है चलना मेरा होता है। अरे यही तो शान है सैयदना गौसे आदम की। एक दिन गौसे आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु खुदा की बारगाह में सुपुर्दगी के आलम में आ गए और इस्तिगराक की हालत में होने के बाद कहने लगे मौला ये सब कुछ मेरा नहीं, ये हाथ तेरा है मौला, ये आंख तेरी है मौला, ये दिल तेरा है मौला, ये पूरा जिस्म तेरा है पाक परवरदिगार, ये सारी तेरी ममलूक है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा घर नहीं, मेरा दर नहीं, ये घर भी तेरी ममलूक है, ये दर भी तेरी ममलूक है, ये हाथ मेरा नहीं तेरा है, जबान मेरी नहीं तेरी है। रब्बे कदीर की रहमत जोश में आई, फरमाया अब्दुल कादिर जब तूने सब कुछ मेरे हवाले कर दिया तो सुन मैं तेरी जबान हो गया हूँ, मैं तेरी आंख हो गया हूँ। और कसम खुदा की जरा गौर तो कीजिए, जब खुदा किसी बंदे की जबान हो जाए तो जबान तो बंदे की होती है लेकिन बोलना खुदा का। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब सुभान माशाअल्लाह। हुजूर सैयदना गौसे आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हर वली किसी नबी के कदम पर होता है। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने दौर में एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनकी बारगाह में एक मुरीद को भेजा, कहा जाओ पूछ कर आना कि मैं किसके कदम पर हूँ। उधर से मुरीद आया, जैसे ही सुना खुश हो गए। मुरीदीन ने अर्ज किया हुजूर क्या मामला है, चेहरे पर मुस्कुराहट। फरमाया मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ आज मुझे पता चल गया कि मैं हजरत ईसा के कदम पर हूँ। और हमारा गौस नबी के कदम पर। और एक बात याद रखें, जो वली
वली जिस नबी के कदम पर होता है, उस वली से अगर उस नबी से उसके जमाने में जो मौजज़ात सादिर हुए, वही बशक्ल करामत उस वली से सादिर हो जाता है। बेशक 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 साले पेश करूंगा। सैयदना गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखे। हजरत गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु हमारे नबी के कदम पर कैसे है। आप जरा चलिए मदीने की सरजमीन पर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ज़वा-ए खंदक में शरीक है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बड़े भूखे हैं, आपको भूख का एहसास हो रहा है। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्तफ़ा की दावत की है, आका करीम अलैहिस्सलाम के खाने का इंतजाम होता है। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु घर आते हैं, थोड़ी सी जौ थी और उसके बाद आपने बकरी का बच्चा ज़िबा किया। उसके बाद आप बाहर तशरीफ ले गए, आपके दो बेटे घर में मौजूद थे। सैयदना जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दो बेटों में बड़े बेटे ने छोटे से कहा, चलो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ अब्बा जान ने किस तरीके से बकरी के बच्चे को ज़िबा किया है। बड़े भाई ने छोटे की गर्दन पर छुरी रखी और उसको ज़िबा कर दिया। उसका इंतकाल हो जाता है। जब वालिदा ने देखा कि मेरे बड़े बेटे ने छोटे को कुर्बान कर दिया है, फौरन बड़े के पीछे भागी। वो छत पर चढ़ता है और वो भी जमीन पर गिरकर उसका इंतकाल हो जाता है। सैयदना गौसे आदम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर का आलम देखिए, दोनों बच्चों का इंतकाल हो गया। लेकिन नबी करीम की चाहने वाली सहाबिया की मोहब्बत तो देखे, अपने शौहर को नहीं बताया। मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ले आए, दस्तरखान लग जाता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खाने का इंतजाम हो गया है। आका करीम दस्तरखान पर तशरीफ फरमा है, खाना शुरू फरमाना चाहते हैं। इतने में जिब्रील आ गए, फरमाया इन्नल्लाह ताला युक़रिउस सलाम अलैका, ऐ प्यारे महबूब अल्लाह आपको सलाम भेज रहा है, अल्लाह आपको सलाम भेज रहा है। और रब ने यह फरमान भी भेजा है कि मोहम्मद अरबी खाना उस वक्त तक मत खाना जब तक के जाबिर के दोनों बच्चे शरीक न हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरजमीने खना गोटिया, अजहरी कमेटी, मुफ्ती शहजाद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु उठे, अपनी बीवी के पास पहुंचे, कहा सुनो मेरे आका ने फरमाया है दोनों बेटों को साथ में शरीक करना है, बताओ कहाँ है। अभी बीवी ने कलेजे पर पत्थर रख लिया है, सदमा बहुत बड़ा है, लेकिन इजहार इसलिए नहीं किया कि अगर मैं बता दूंगी तो आका खाना छोड़ देंगे, आका करीम अलैहिस्सलाम की दावत में खलल पड़ जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी ने कहा बीवी बताओ। बीवी ने बहाना किया, कहा रसूल पाक से कह देना आका आप खाना तनावुल फरमा ले, बेटे बाहर खेलने गए हैं, जब वापस आएंगे तो खाना खा लेंगे। सहाबिया बयान करती है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत जाबिर जाते हैं, मेरे आका आप खाना खा लीजिए, मेरे बेटे बाद में आकर खाना खा लेंगे। रसूल आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमेटी के 2-3 आदमी चले जाएं, बाकी सब बैठे, गलत बात है। आप तशरीफ रखिए, आप लोग बैठिए, कमेटी के 2-3 आदमी जाके उनको अलग कर दें, मजमे से बाहर निकाल दें। आप तशरीफ रखें, इतना कामयाब प्रोग्राम है। आप तशरीफ रखिए, इन दोनों हजरात को बाहर निकालिए, अलग अलग बिठाइए। मनारी के या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह, आप हजरात भी बैठ जाइए। सब एक दूसरे को बिठाते रहेंगे तो फिर बैठेगा कौन। अरे भाई तकरीर ज्यादा पसंद आ गई है या ज्यादा गुस्सा आ गया है कि आखिर उनको बुलाया किसने है। अगर मेरी वजह से लड़ रहे हो तो मुझे बता दीजिए, मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। और अगर किसी और वजह से लड़ रहे हैं तो मोहब्बतों के साथ बैठ जाइए, लड़ाई खत्म कीजिए। सैयदना गौसे आदम की मजलिस है, इसमें अदब के साथ बैठिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी हाजिरी बेकार हो जाए। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आका करीम की बारगाह में आरिज़ा पेश किया, मेरे आका खाना आप तनावुल फरमा लीजिए, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, जब वापस आएंगे तो उसके बाद खाना खा लेंगे। रसूल आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी बार खाना शुरू फरमाना चाहा, फिर जिब्रील आ गए पैगाम लेकर, आका खाना नहीं खाना है, खाना उस वक्त खाएंगे जब दोनों बच्चे आपके साथ शरीक हो जाएंगे। हजरत जाबिर फिर जाते हैं, अब जब पहुंचे तो बीवी से कहा आका करीम बुला रहे हैं, अल्लाह के रसूल का खाना मुलतवी हो गया है, प्यारे आका खाना उस वक्त तक तनावुल नहीं फरमाएंगे जब तक के दोनों बच्चे ना आ जाए। अम्मा जो अब तक सदमे को बर्दाश्त कर रही थी, आंखों
में आंसू आ गए, फूट फूट कर रोने लगी। कहा तुम्हें मालूम नहीं बच्चों के साथ क्या हादसा हुआ है? एक बच्चे ने बड़े ने छोटे को ज़िबा कर दिया है और बड़ा बच्चा छत से गिरकर जमीन पर आ गया और गिरने के बाद इंतकाल हो गया है। अब हजरत जाबिर भी रोते हैं, वालिदा भी रो रही है बच्चों की, हजरत जाबिर भी रो रहे हैं और रोने के बाद उन मुर्दा जिस्मों को नबी की बारगाह में लाते हैं, रो रो कर अरीज़ा पेश करते हैं, आका हमारे दोनों लखते जिगर दुनिया से चले गए, अब हम क्या करेंगे? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अफसुर्दा हो जाते हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की नजर उन पर पड़ती है। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका देर ना कीजिए, आका देर ना करे, बल्कि अपने हाथों को उठाए। रसूल पाक अलैहिस्सलाम के हाथ उठे, इधर नबी का हाथ उठना था, उधर रब्बे कदीर ने रसूल पाक की जबान से निकले हुए जुमलों को कबूल कर लिया। आका फरमाते हैं, मौला जाबिर के दोनों बच्चों को जिंदा कर दे। इधर हजरत जाबिर के लिए दुआ हो रही है, दोनों बच्चे जिंदा हो जाते हैं और दुआ फौरन कबूल हो जाती है। वो दोनों बच्चे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के साथ खाने में शरीक होते हैं। यह मुस्तफा की दुआ है, जिस दुआ की इजाबत और कबूलियत के बारे में बरेली का इमाम कहता है, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरजमीने खना गोटिया, अजहरी कमेटी, मुफ्ती शहजाद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब ये वाक़या मैंने बता दिया, मदीने में मेरे नबी हजरत जाबिर के दोनों मुर्दा बच्चों को जिंदा बोलो कर चुके ना। मैंने कहा था वकुल्लु वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबिय्य बदरिल कमाली। बस यही शेर मेरी तकरीर की जान है, जो भी मैं बोलूंगा इसी शेर पर सारी तकरीर घूमेगी। फरमाते हैं गौसे आदम हर वली किसी नबी के कदम पर होता है और मैं नबी के कदम पर हूँ। आपने देखा मदीने में मेरे आका हजरत जाबिर के दोनों मुर्दा बच्चों को जिंदा कराए हैं और अब देखिए बगदाद की सरजमीन पर चूंकि गौसे आदम नबी के कदम पर है और मैंने कहा था नबी से जो मोजज़ा सादिर होता है वही शक्ल करामत वली से सादिर हुआ करता है। सैयदना गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में नहीं बल्कि आपके नाना जान की बारगाह में एक औरत आई मुर्दा बच्चे को लेकर, कहने लगी मेरा यह बच्चा मर गया है, इकलौता है, लाडला बेटा है, इसको जिंदा कर दीजिए। हजरत अब्दुल्ला सौमाई ने नगाह उठाई, लोहे महफूज पर देखा, कहा दूसरा मिलना नहीं है और ये जिंदा होना नहीं है। मायूस होकर अपने बच्चे को लेकर जा रही थी। सैयदना गौसे आदम छोटे थे, बचपने में खेल खेला करते थे, बच्चों मर जाओ जिंदा हो जाओ, बच्चों मर जाओ जिंदा हो जाओ। सैयदना गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु ये खेल खेल रहे हैं। किसी ने मशवरा दिया देर क्या करती है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के लाडले बेटे गौसे आदम की बारगाह में ले जा, जब वो खेल खेले उसी खेल में तू भी शरीक हो जा। वो बच्चे को लेकर जाती है। गौसे आदम ने फरमाया बच्चों मर जाओ, उसने अपने मुर्दा बच्चे को उसी बच्चों की लाइन में लिटा दिया, फरमाया जिंदा हो जाओ, उसका बच्चा जिंदा हो जाता है। सैयदना गौसे आदम के नाना जान देखते हैं अब्दुल्ला सौवाई जलाल में आते हैं, डंडा उठाते हैं, इसलिए कि आपने फरमाया था जिंदा नहीं होगा और इधर नवासे ने जिंदा कर दिया है, कहीं औरत के ज़हन में यह ख्याल ना आ जाए। नाना मना करते चले जा रहे हैं और नवासा जिंदा करता चला जा रहा है। सैयदना गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे पीछे गौसे आदम का कदम कब्रिस्तान में पड़ा। आप जलाल में आ गए, आपने फरमाया कब्रिस्तान के मुर्दों लेटे कैसे हो, उठो नाना जान मुझे मेरे पीछे पीछे दौड़ते हुए आ रहे हैं। जब गौसे आदम की जबान से यह जुमला निकला था तो कसम खुदा की कब्रिस्तान के मुर्दे जिंदा हो गए थे। हम कहते हैं ये दुआ क्यों ना कबूल हो, इसलिए कि जबान तो गौस की है, बोलना खुदा का है। इधर सारे मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। सैयदना गौसे आदम के नाना जान कहते हैं, अब्दुल्ला सौबाई फरमाते हैं बेटा रुक जा और अपनी जबान को खामोश कर ले, अपनी जबान को खामोश कर ले। गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु जबान को खामोश कर लेते हैं। जरा देखिए हमारे नबी के इस लाडले बेटे गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान को देखे। मदीना में मेरे आका हजरत जाबिर के मुर्दा बच्चों को जिंदा कर रहे हैं और बगदाद में मेरा गौस मुर्दा बच्चों को जिंदा करता नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस, जिंदाबाद, 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 माशाअल्लाह। अब थक गए हो गए, बैठ जाइए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शॉर्टकट नारा सही रहता, अच्छे नारे याद करें माशाअल्लाह। इनका जो नारा है उस नारे को सुनकर मुझे एक बात कहने को दिल सुभान चाहता अल्लाह, बहुत अच्छा नारा।
ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سب سے زیادہ مصطفیٰ کو چاہتے ہیں، بے شک خدا کے بعد سب سے زیادہ مصطفیٰ کو چاہتے ہیں، اور یہ پیغام لے کر جائیے۔ آج جو یہ اختلاف پڑا ہوا ہے کہ فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں میں ہوں، فلاں یہ ہوں، یہ سب چھوڑو۔ بے شک بہت اچھا۔ میں فلاں خانقاہ سے جڑا ہوا ہوں تو فلاں کی برائی کروں گا، یہ اپنا منصبی فریضہ سمجھتے ہیں کچھ لوگ جی 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 کہ غوث اعظم چھوٹے ہیں، شاہ مدار بڑے ہیں۔ پہلی بات یہ سن لو، حضرت شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ ہو، یا وارث پاک ہو، یا حضرت شادانہ ولی ہو، یا سیدی سرکار اعلی حضرت ہو، جتنے بزرگان دین ہیں وہ سب نبی کے غلام ہیں، اور جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ ہم سب کے سروں کا تاج اور امام ہوا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور غوث اعظم کو جو منصب اور مرتبہ ملا ہے، سارے ولیوں کی گردن پر غوث اعظم کا، سارے ولیوں کی گردن پر غوث اعظم کا قدم۔ اور پہلے یہ بتا دوں کہ یہ قدم ملا کہاں سے، یہ منصب اور مرتبہ ملا کہاں سے؟ جی جی جی۔ اس کو حضرت شیخ فاضل عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب تفریح الخواطر فی مناقب الشیخ عبد القادر، اور انہوں نے حضرت جنیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب حرز العاشقین سے اس کو نوٹ کیا ہے، ذکر کیا ہے، نقل کیا ہے۔ اور سیدی سرکار اعلی حضرت نے اس روایت کے تعلق سے فرماتے ایسے امور کو اتنی ہی سند پس ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے بیٹے غوث اعظم کی شان سنو۔ اب میں نے اس روایت کی توثیق کر دی ہے، اب تو اس روایت کے الفاظ بھی سنیں۔ لما عرج بجد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیلۃ المرصاد وبلغ سدرۃ المنتہى بقي جبريل الامین علیہ الصلوۃ والسلام متخلفا وقال يا محمد لو دنيت انمنة الله تركت، فارسل الله روحي اليه في ذلك المقام لاستفادة من سيد الانام علیہ الصلوۃ والسلام، فتشرفت به واستحصلت على النعمة العظمى والورثة والخلافة الكبرى۔ اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آگے بیان کرتے چلے جاتے ہیں، فرماتے ہیں وحضرت ووجدت بمنزلتی البراقی رضی البراقی، اور اس کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حتی وصل فکان قاب قوسین او ادنا، فقال محمد یا ولدی وحقدت عینی قدمی هذه على رقبتك وقدماك على رقاب كل اولیاء اللہ۔ یہ غوث اعظم اپنے منصب کو اپنے زبان سے بیان کرتے ہیں، اور اس کو حرز العاشقین کے حوالے سے ذکر کیا گیا۔ ترجمہ سماعت کرے، غوث اعظم فرماتے ہیں معراج کی رات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، معراج کی رات ہے، فرمایا میرے نانا جان کو لے جایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ خدا کی بارگاہ، سبحان اللہ۔ سدرۃ المنتہا پر میرے آقا پہنچے، جبریل سے کہا آگے بڑھو، کہ لو دنیت انمنۃ اللہ ترکت، آقا میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کیوں نہیں بڑھ سکتا؟ اس لیے کہ میں آپ کی طرح نہیں ہوں۔ بے شک، ارے اونچا بولو۔ اور آقا آپ چلے جائیے، رکیے مت، اس لیے کہ آپ میری طرح نہیں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لو دنیت انمنۃ اللہ ترکت، اگر انگلی کے پورے کے برابر آگے بڑھ گیا آقا میرے نورانی پر جل جائیں گے۔ اللہ اب غوث اعظم فرماتے ہیں فارسل اللہ الیہ روحی فی ذلک المقام لاستفادتی من سید الانام علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرماتے ہیں غوث اعظم اب اس مقام پر اللہ نے میری روح کو بھیج دیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میری روح کو بھیج دیا گیا۔ آقا یہ تو بتائیں روح کو کیوں بھیجا گیا؟ لے استفادتی من سید الانام، فرمایا اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں نبی کی ذات پاک سے برکت حاصل کروں، فائدہ حاصل کروں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فتشرفت بھی، تو پھر میں مشرف ہو گیا، اور میں نے اسی مقام پر بڑی نعمت بھی حاصل کی، خلافت عظمیٰ بھی حاصل کی، اور میں نے وراثت بھی حاصل کر لی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں سنو لوگوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حتی رکب علیہ جدی رسول اللہ، یہاں تک کہ مجھے براق کی جگہ پیش کیا گیا اور میرے آقا مجھ پر سوار ہو گئے۔ غوث اعظم سواری کی جگہ پیش کیے گئے ہیں، اور یہ دنیا کی بات نہیں چل رہی ہے، یہ اس مقام کی بات چل رہی ہے جہاں پر جبریل کا قدم رک گیا ہے اور آقا کریم تشریف لے جا رہے ہیں۔ غوث اعظم کی روح نیچے ہے، سواری کے طور پر ہے، میرے آقا سوار کے طور پر آگے تشریف لے جاتے ہیں۔ فرمایا حتی بلغ فکان قاب قوسین او ادنا، یہاں تک کہ آقا کریم خدا کی بارگاہ کے بہت قریب
करीब हो गए, इधर नबी करीब हुए, उधर गौसे आदम करीब हो गए। अल्लाह के रसूल की रहमत जोश में आती है, फरमाते हैं या वलदी वहिद्दत आईनी, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी आंख के, ऐ मेरी आंख के गुल्ले, फरमाया ऐ मेरी आंख के तरफ और किनारे, फरमाते हैं गौसे आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु को। मेरे आका फरमाते हैं मेरे बेटे अब्दुल कादिर सुन, कदमी हाजी अला रखबती का, मेरा ये कदम तेरी गर्दन पर है, वह कदमा का अला रिकाबी कुल्ली औलिया अल्लाह, और तेरे दोनों कदम कयामत तक आने वाले सारे वलियों की गर्दनों पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम, सरजमीने खना गोटिया, अल्लामा शहजाद रजा साहिब किबला, सुभान अल्लाह माशा। कुछ लोगों के जहन में ये रहता है कि फला पहले आ गए तो अब गौस की जी फौकियत बरतरी छोटी हो गई। नहीं, बस पहले आने से ये लाजिम नहीं आता कि गौसे आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु किसी से छोटे हो जाए, और तारीख तो हमें ये बताती है कि गौसे आदम से वो भी बाद में आया। बेशक। और सुनो, गौसे आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु के कदम की अजमत और बुलंदी को अगर पहले ही की बात की जा रही है तो चलिए हजरत उवैसे करनी की बारगाह में चलते हैं। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंतकाल से पहले अपना जुब्बा हजरत अली और हजरत उमर को दिया था और फरमाया था जाओ कर्न चले जाना, मेरा आशिक उवैस मिलेगा, उसको ये जुब्बा दे देना, और देने के बाद उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। जब हजरत उमर और हजरत अली ये जुब्बा लेकर पहुंचे थे, वहां गलियों में तलाश कर रहे थे, हजरत उवैसे करनी को नमाज पढ़ते हुए कोई देख नहीं पाता था। लोगों से पूछा बताओ उवैस कहाँ है, तो जमाने वालों ने कहा था, गांव वालों ने कहा था, बस्ती वालों ने कहा था वो कहीं पागल है, वो किसी जगह गुठलियां बीन रहा होगा। हजरत उवैसे करनी खजूर की गुठलियां बीन कर अपना खर्चा चलाते थे, अपनी माँ की खिदमत किया करते थे। आज जो माँ की खिदमतों से भागते हैं, हजरत उवैसे करनी के नाम को सुनने के बाद ये अहद करके जाना कि इंशाअल्लाह रहमान माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे। हजरत उवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जब पहुंचे, हजरत उवैसे करनी को देख लिया हजरत अली ने, हजरत उमर फारूक आदम ने कि नमाज पढ़ रहे हैं। जब ये नमाज से फारूक हुए, फरमाया अब तक मुझे किसी ने देखा नहीं था। हजरत को आने दीजिए और रास्ता बना लीजिए कमेटी के नौजवान जो है बहुत अदब और एहतराम के साथ। अच्छा हजरत नहीं है, शायद हजरत हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, कौन बना मेहमान काबा। हजरत को आने दीजिए। देखिए मुसाफा इस वक्त ना करें, हजरत को स्टेज तक बहुत अदब और एहतराम के साथ लाया जाए। हजरत को लेकर आइए, घेरा बनाकर लाइए, इस वक्त कोई साहब मुसाफा ना करें। उवैसे करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की के करीब हजरत उमर फारूक आदम, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु जुब्बा लेकर पहुंचे और फरमाया सुनो आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको सलाम बोला है, ये जुब्बा पेश किया है। हजरत उवैसे करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु जुब्बे को लेते हैं, सीने से लगाते हैं, और उसके बाद हजरत अली हजरत उमर फारूक आदम रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं नबी ने यह कहा है उवैस से मेरी उम्मत के लिए दुआ करा देना। हजरत उवैसे करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ठीक है, आप यहाँ तशरीफ फरमा रहिए। आप जुब्बा लेकर आगे बढ़ते हैं और आप सिजदा रेज हो जाते हैं, सिजदे में अपना सर रख लेते हैं और उसके बाद जुब्बे को आगे रखते हैं, दुआ करते चले जा रहे हैं मौला रसूल पाक अलैहिस्सलाम वसलाम की उम्मत की बख्शिश फरमा दे। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वसलाम का जुब्बा रखा हुआ है। पता चला कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम के जुब्बे को आशिक रसूल हजरत उवैसे करनी ने आगे रखा, उसके वसीले से दुआ कर रहे हैं। मालूम हुआ बुजुर्गों का वसीला देना और बुजुर्गों से मंसूब चीजों का वसीला देना ये हजरत उवैसे करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वसलाम का जुब्बा लिया है, दुआ करते चले जाते हैं। हजरत उवैसे करनी ने दुआ की, आवाज आई उवैस अपना सर उठा ले, हमने तेरी दुआ की बुनियाद पर आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आधी उम्मत की बख्शिश फरमा दी है, लेकिन आधी उम्मत की बख्शिश अब्दुल कादिर के आने के बाद की जाएगी। आधी उम्मत की बख्शिश अब्दुल कादिर के आने के बाद की जाएगी। अर्ज किया उवैसे करनी ने मौला जरा ये तो बता ये अब्दुल कादिर कौन है, मौला ये तो बता ये अब्दुल कादिर कौन है। फरमाया ये मेरा महबूब होगा और मेरे महबूब का महबूब होगा, और फरमाया इसका कदम कयामत तक आने वाले सारे वलियों की गर्दन पर होगा। जो इसकी विलायत और कुतुबियत का एतराफ करेगा मैं उसको वली बना दूंगा। अब तवज्जो फरमाइएगा।
ये कहते हैं कि गौसे आदम से पहले फला आ गए इसलिए वो बड़े हो गए, किसी के पहले आने से बड़ा होना नहीं होता। और मैंने बताया तहकीक तो ये बताती है कि फला बुजुर्ग भी गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद आए हैं। अब सुनिए हजरत उवैस करनी का जुमला। हजरत उवैस करनी फरमाते हैं, मौला मैंने अब्दुल कादिर के कदम को अपनी गर्दन पर ले लिया है, रब्बे कदीर की तरफ से ऐलान हुआ, उवैस करनी हमने तेरे मनसब और मर्तबे को बढ़ा दिया है। ये हजरत उवैस करनी है जो कर्न की सरजमीन पर सैयदना गौसे आदम की अज़मत और बुलंदी का ऐलान कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अभी गौस दुनिया में आया नहीं है, अभी उनकी अज़मत के चर्चे पहले ही होते चले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत इसीलिए तो मेरा इमाम कहता है, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मेरी तकरीर का महवर था वकुल्लो वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबिय्य बदरिल कमाली। मैंने बताया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो मौजज़ात सादिर हुए, रब का करम ये हुआ, उसकी शक्ल या उसकी मसीर या उसी जैसी करामत गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु से सादिर होती चली जाती है। आका करीम अलैहिस्सलाम की शान क्या थी? यहूदियों ने एक बार कहा था, आप अगर नबी है तो आप खजूर की गुठली रखिए और सुबह तक इस खजूर का दरख्त हमें बड़ा होता हुआ मिलना चाहिए, उसमें खजूरें भी आए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, एक पत्थर के नीचे आपने गुठली रखी। अब यहूदियों ने साजिश रची, वो गुठली निकाल दी। सुबह को आए, कहा अब गुठली भी नहीं है, अब कोई दरख्त नहीं उगेगा, अब कोई दरख्त नहीं जमेगा। उनके जहन में यह ख्याल था, लेकिन सुबह को आए तो क्या देखते हैं, खजूर का दरख्त था और उस पर जो खजूरें थी बगैर गुठली की थी। बताना मैं ये चाहता हूँ, रसूल पाक अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ये है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम वहाँ मदीना शरीफ के अंदर खजूर का दरख्त उगा रहे हैं। अब देखिए सैयदना गौसे आदम की शान, हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बार एक जगह तशरीफ फरमा थे। आपके सामने जो खजूर के दरख्त थे, एक खजूर का दरख्त ऐसा था उस पर फल आए हुए थे, खजूरें लगी हुई थी, और एक दरख्त ऐसा था जो जड़ से सूखा हुआ था। एक दरख्त से आवाज आई, ऐ गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु, तुम्हें अल्लाह की कसम है तुम मेरे खजूरों को खा लो। सैयदना गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु खजूरें तनावुल फरमा लेते हैं। अब जो सूखा हुआ दरख्त था उससे आपने फरमाया, उसकी आवाज आई, अब्दुल कादिर आप मेरे नीचे बैठकर वुजू फरमा लीजिए। सैयदना गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु से जब पहले वाले दरख्त ने कहा था आपको कसम है खजूरें खा लीजिए, हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखो, आपने खजूरें तोड़ने के लिए कोई किसी डंडे का इस्तेमाल नहीं किया था, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया, पल पे बैठे हुए हैं, हाथ को बढ़ाया, खजूर की टहनी नीचे झुक गई। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, ये नबी के घर वाले हैं, इनकी अज़मत और शान बुलंदी देखिए। जरा चलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ के पेट में थे, हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र कुरान करता है, फ़अजाअहल मख़ातु इला जिज़अन नख़ला तुसाक़ित, फरमाया क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यन मनसिय्या फ़नादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिय्या व हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़ला। बस एक नुक्ते की बात देकर, नुक्ते की बात बताने के बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। हुजूर हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा को जब दर्द से हुआ तो आप एक खजूर के करीब पहुंची, उधर से आवाज आई कि इस खजूर के दरख्त को हिलाओ। आपने हरकत दी, हरकत देने के बाद खजूरें नीचे गिर गई। ये वीडियो ना बनाएं, वो उधर वीडियो ना बनाएं, कोई आवाज रिकॉर्ड करे, इसको बंद कीजिए, कमेटी के लोगों को ध्यान रखें, कोई सा वीडियो ना बनाएं, सिर्फ आवाज को रिकॉर्ड करें। हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा को यह हुक्म हुआ था, हुज़्ज़ी खजूर के दरख्त को हिलाओ। आपने हिलाया, खजूरें नीचे गिर गई। इधर गौसे आदम की शान देखो, हिलाने का हुक्म नहीं हो रहा है, बस उससे आवाज आती है, अब्दुल कादिर तुम्हें कसम है मेरे फल खा लो। इधर गौसे आदम ने हाथ बढ़ाया है, फौरन टहनियां और शाखें नीचे आ गई है। यह गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। अब दूसरा दरख्त कहता है मेरे नीचे वुजू कर लीजिए। सैयदना गौसे आदम ने दाएं बाएं देखा तो कहीं कोई दरिया नहीं था, पानी का इंतजाम नहीं था, इतने से उसमें चश्मा जारी हुआ। आपने वुजू किया और वुजू करने के बाद में फिर आपने उसी चश्मे से पानी पिया। जैसे ही आपने वुजू किया, वुजू करने के थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि उस खजूर के दरख्त पर फल आ गए हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब देखिए मदीना शरीफ में आका करीम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा क्या है, आपने खजूर का दरख्त उगा दिया और इधर मुस्तफा जाने रहमत का फैज गौसे आदम को मिला, तो आपके वुजू करने की बरकत से अल्लाह ताला ने उसको सब्ज़ो शादाब बना। सुभान अल्लाह।
یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو وہ منصب اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ آپ سے پہلے جو ولی آئے یا قیامت تک جو ولی آئیں گے سب کی گردن پر غوث اعظم کا قدم ہے. ہاں جو منصوص علیہ ہیں جن کے بارے میں صراحت کر دی ہے جیسے حضرت حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر بزرگان دین جن کے بارے میں ہمارے علماء نے صراحت کی ہے، بس وہی مستثنیٰ اور خارج ہے. باقی ہر ولی کی گردن پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم ہے. بس اسی بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور یہ شعر پڑھ کے رخصت ہوتا ہوں. واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک بار کلمہ شریف کا ورد کریں، پڑھے باواز بلند لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر خلاف شرع کوئی بات میری زبان سے نکلی ہے تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.